صحیح بخاری نمبر 6514 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کی ہے کہ دو چیزیں میت کو قبر پر چھوڑ دیتی ہیں اور ان کے پاس صرف ایک چیز باقی رہتی ہے۔ ان کو چھوڑنے والی دو چیزیں ان کا اہل و عیال اور مال ہیں، اور ان کے پاس صرف ان کے اعمال باقی رہ جاتے ہیں۔ پوری تاریخ میں لوگوں نے ہمیشہ اپنی زیادہ تر کوششیں دولت اور خوشحال خاندان کے حصول پر مرکوز کی ہیں۔ حالانکہ اسلام ان چیزوں سے منع نہیں کرتا، جیسا کہ کسی کی ذمہ داریوں اور فرائض کو پورا کرنے کے لیے ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسلام صرف مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے لیے ان کی ضرورت سے زیادہ کوشش کریں، اور ان صورتوں میں جب یہ چیزیں کسی کو ان نعمتوں کو استعمال کرنے سے روکتی ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ضروری دولت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسا خاندان حاصل کرنا چاہیے جو انہیں آخرت کی تیاری کے لیے ترغیب دے۔ جب اس طرح سے استعمال کیا جائے تو یہ دونوں اچھے کام سمجھے جاتے ہیں۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 6373 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ یہ ایک ذہین انسان کی نشانی ہے جو اس چیز کو ترجیح دیتا ہے جو اس کی ضرورت کے وقت صبر کرے اور اس کی مدد کرے، یعنی نیک اعمال۔ دوسری طرف جو اپنے مال اور رشتہ داروں کو ان نعمتوں کو استعمال کرنے سے روکنے کی اجازت دیتا ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے، انہیں قرآن پاک میں خسارے میں جانے والا قرار دیا گیا ہے۔ باب 63 المنافقون آیت 9۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ کچھ لوگ غلط طور پر یہ مان سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، جیسا کہ اس نے انہیں بڑی دولت اور خاندان سے نوازا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر کے ان کی الجھنوں کو دور کر دیا کہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور قریب وہی ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ باب 34 سبا آیت 37۔ اور تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں ہمارے مقام سے قریب نہیں کرتی، بلکہ وہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ قرآن پاک کے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو متنبہ کیا ہے کہ ان کے مال اور رشتہ دار ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ صحیح دل کے ساتھ آخرت تک نہ پہنچ۔ باب 26 شعراء آیات 88-89۔ جس دن مال اور اولاد کسی کے کام نہ آئے گی، لیکن صرف وہی جو اللہ کے پاس پاک دل کے ساتھ آتا ہے۔ صحیح دل کی تعریف طویل ہے، لیکن سادہ الفاظ میں یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو خلوص نیت سے پورا نہ کرے، اس کی ممانعتوں سے باز نہ آئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا نہ کرے، اس پر درود ہو۔ یہ یقینی بنائے گا کہ وہ مثبت خصوصیات کو اپناتے ہیں اور منفی خصوصیات کو ختم کرتے ہیں۔ اچھے اخلاق کا حامل شخص اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حقوق کو ان نعمتوں کو استعمال کر کے ادا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے انہیں دی گئی ہے۔ جو اس طرح کا برتاؤ کرتا ہے وہ ایک مضبوط روحانی دل اور جسم کا مالک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا مال آخرت میں صرف اس صورت میں فائدہ مند ہو سکتا ہے جب وہ اسے جاری خیراتی منصوبوں پر خرچ کر کے آگے بھیجیں۔ اس کی تصدیق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 1376 میں موجود ایک حدیث سے کی ہے۔ یہی حدیث بنی نوع انسان کو بتاتی ہے کہ ایک سالے بچہ اپنے فوت شدہ والدین کی مغفرت کی دعا کرے گا، بھی قبول کیا۔ بدقسمتی سے اس دن اور دور میں بہت سے بچے اپنے فوت شدہ والدین کے لیے دعا کرنے کے لیے اپنی وراثت کی تلاش میں اتنے مصروف ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک سالے بچے کی پرورش کرنا جو اپنے فوت شدہ والدین کے لیے دعا کرتا ہے، اس صورت میں حاصل کرنا ممکن نہیں جب تک کہ والدین اپنی زندگی میں خود نیک اعمال انجام نہ دیں، یعنی مثال کے طور پر رہنمائی کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اعمال صالحہ سے پرہیز کریں اور یہ امید رکھیں کہ ان کے اس سے نکل جانے کے بعد دوسرے ان کے لیے دعا کریں گے۔ دنیا انسان کو زندہ رہتے ہوئے نیک اعمال کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور پھر امید ہے کہ دوسرے ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعا کریں گے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخرت کے لیے جو مال بھیجے گا وہی ان کو فائدہ دے گا۔ اس میں اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خرچ کرنا شامل ہے،
जैसे कि अपनी जिम्मेदारियों और फ़राइज़ की अदायगी पर खर्च करना, जैसे कि अपने बच्चों की तालीम। तमाम माल फजूल गुनाह के कामों पर खर्च हो जाएगा और मालिक के लिए तनाव का बाइस बनेगा और दोनों जहानों में उनकी सज़ा का बाइस बन सकता है। लालच की वजह से सदका फित्र को रोकने वालों को इबरतनाक सज़ाओं से डराया गया है। मिसाल के तौर पर सही बुखारी नंबर 1403 में मौजूद एक हदीस में तंबी की गई है कि जो शख्स इस संगीन गुनाह का मुर्तकिब होगा, क़यामत के दिन इसे एक बहुत बड़ा जहरीला सांप मिलेगा जो उसके गिर्द लपेटेगा और इसे मुसलसल काटेगा। बाब 3 अली इमरान आयत 180। और जो लोग लालच के साथ इस चीज़ को रोकते हैं जो अल्लाह ने उनको अपने फजल से दिया है, वो ये ख्याल ना करें कि ये उनके लिए बेहतर है, बल्कि उनके लिए बदतर है। उनकी गर्दनों में क़यामत के दिन वो घेर लिया जाएगा जो उन्होंने रोक रखा था। सुनन अबू दाऊद नंबर 1658 में एक हदीस है जिसमें खबरदार किया गया है कि क़यामत के दिन जो सोना और चांदी जिसके पास है, इसे जहन्नम के शोलों में तपा उठ जाएगा और इससे उनके जिस्मों को दाग दिया जाएगा। इस पर वाजिब सदका दे दो। मजीद बरा, मैयत की तरफ से छोड़ी गई दौलत दूसरों के लिए छोड़ दी जाएगी ताकि वो इससे लुत्फ अंदोज हो सके, जबकि मैयत इसे जमा करने का जिम्मेदार है। गौरतलब है कि अगर कोई शख्स जानबूझकर माल किसी ऐसे शख्स के लिए छोड़ दे जो उसके पास रखने के काबिल ना हो और इस तरह इसका गलत इस्तेमाल करे तो इसके लिए भी मैयत को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके बरक्स, अगर कोई अपने पीछे माल किसी ऐसे शख्स के लिए छोड़ जाए जो उसे सही तरीके से खर्च करता है, तो मैयत को क़यामत के दिन इस वक्त बहुत ज़्यादा पशेमानी का सामना करना पड़ेगा जब वो इसे सही तरीके से खर्च करने वाले को मिलने वाले अजर अजीम को देखेंगे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम नंबर 7420 में मौजूद एक हदीस में वाज़े फरमाया है कि इंसान अपने माल को सिर्फ 3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकता है। पहला माल है जो उनके खाने पर खर्च होता है, दूसरा माल उनके कपड़ों पर खर्च किया गया और आखिरी माल वो है जो उन्होंने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खर्च किया। बाकी तमाम दौलत दूसरे लोगों के लिए छोड़ दी जाती है, जबकि मैयत को जमा करने का जिम्मेदार ठहराया जाता है। माल जमा करना और गलत तरीके से माल खर्च करना इंसान को मादी दुनिया से महब्बत करने और आखिरत को नापसंद करने की तरगीब देता है, जैसा कि वो अपने प्यारे माल को पीछे छोड़ने को नापसंद करता है जो उसके मरने के बाद वाक़े होगा। जो आखिरत को नापसंद करता है वो इसके लिए मुनासिब तैयारी नहीं करता, यानी वो उन नेमतों को इस्तेमाल नहीं करेंगे जो उन्हें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दी गई है। इसके अलावा अगर कोई सच्चा तक़वा इख्तियार करना चाहता है तो उसे अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपना माल खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बाब 3 अली इमरान आयत 92। तुम इस वक्त तक नेकी को हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अल्लाह की राह में इस चीज़ से खर्च न करो जो तुम्हें पसंद है। हकीकत में दौलत एक अजीब साथी है, क्योंकि ये सिर्फ किसी को फ़ायदा पहुंचाता है जब वो उसे छोड़ देता है, मतलब जब उसे सही तरीके से खर्च किया जाता है। एक शख्स को अहमक कहा जाएगा अगर वो बगैर किसी शराइत के तवील सफ़र पर निकले। इसी तरह जो अपने माल को आखिरत के तवील सफ़र के लिए सामान की सूरत में आगे नहीं भेजता वो भी बेवकूफ़ है। इसमें कोई शक नहीं कि मौत के वक्त इंसान को सबसे बड़ा दुख वो होता है जब उसे एहसास होता है कि वो अपनी मेहनत की कमाई पीछे छोड़कर खाली हाथ आखिरत की तरफ सफ़र कर रहा है। एक मुसलमान को हर हाल में इस नतीजा से बचना चाहिए। अपनी कब्र की तैयारी का वाहिद तरीका नेक अमाल अंजाम देना है, क्योंकि वहाँ सुकून की कोई दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी। दर हकीकत ये आखिरत में अपने अब्दी घर की तैयारी का जरिया है, इसलिए इस तैयारी को दुनियावी मादी दुनिया की तैयारी पर तरजीह देनी चाहिए। एक शख्स को अहमक कहा जाएगा अगर उसके पास 2 घर हों और वो अपनी ज़्यादातर कोशिशें घर को खूबसूरत बनाने में सिर्फ करे जिसमें वो कम वक्त सिर्फ करे। इसी तरह अगर कोई मुसलमान इस दुनिया में अपने वक्ती घर को खूबसूरत बनाने में ज़्यादा वक्त और मेहनत सिर्फ करे, आखिरत का अबदी घर, वो भी बेवकूफ़ है। बाज़ का ये रवैया है, हालांकि वो तस्लीम करते हैं और मानते हैं कि उनका इस दुनिया में क़याम मुख्तसर और नामालूम मुद्दत के लिए है, जबकि आखिरत में उनका क़याम अबदी है। ये रवैया ईमान के यकीन की कमी की तरफ इशारा करता है और इसलिए जो भी इस ज़हनियत का हामिल है, इसके लिए ज़रूरी है कि वो इस्लामी इल्म की तलाश और इस पर अमल करे ताकि इसके ईमान के यकीन को मजबूत किया जा सके, इससे पहले कि वो तमाम भलाइयों से महरूम आखिरत तक पहुँच जाए।
जो शख्स अल्लाह ताला की सच्ची इताअत के साथ इसके अहकाम की तामील, इसकी ममानतों से इज्तिनाब और तकदीर का मुकाबला करते हुए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के मुताबिक सब्र के साथ अपनी कब्र की तैयारी करता है, वो इसको पाता है कि उनकी नेकियां उनके लिए सुकून का बाइस हैं, जबकि उनके जमा करदा गुनाह उनके अंधेरे कब्र में क़याम को मजीद बदतर बना देंगे। लिहाजा एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी ताकत और इस्तिताअत के मुताबिक कमजोरी का वक्त आने से पहले ही नेक अमल करे। हर मुसलमान को चाहिए कि वो असल हदीस में बयान की गई हकीकत को पहचाने और इसलिए जो नेमतें अता की गई हैं उनको अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए इस्तेमाल करे, क़ब्ल इसके कि वो इस वक्त तक पहुँच जाए जब अमल साले के लिए उनकी मजीद मोहलत देने की दरख्वास्त रद्द कर दी जाए। बाब 63 अल-मुनाफ़िक़ून आयात 10-11। और जो कुछ हमने तुम्हें दिया है इसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो क़ब्ल इसके कि तुम में से किसी को मौत आ जाए और वो कहे कि मेरे रब अगर तो मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे तो मैं सदका करूं और नेक लोगों में से हो जाऊं। लेकिन अल्लाह किसी जान को इसका वक्त आने पर कभी ताख़ीर नहीं करेगा। उन्हें अब अपने अमाल पर गौर करना चाहिए ताकि वो गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लें और नेक अमाल करने की कोशिश करें इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें गौर व फिक्र करने से इन्हें कोई फायदा ना होगा। बाब 89 अल-फज्र आयत 23। और सामने लाया गया कि वो दिन जहन्नम है, इस दिन आदमी याद रखेगा लेकिन याद करने से इसका क्या फायदा। हर एक इन लोगों पर गौर करे जो उनसे पहले गुजर चुके हैं और उनकी ज़रूरत के वक्त उनको तसल्ली देने के लिए ज़्यादा नेक अमाल अंजाम देने में उनकी नाअहली है। उस वक्त के आने से पहले जल्दी करें और नागुज़ीर की तैयारी करें। बाब 15 उल-हजर आयत 99। और अपने रब की इबादत करो यहाँ तक कि तुम्हें यकीन आ जाए। हमारी वेबसाइट www.sheikhpod.com पर 400 से ज़्यादा मुफ्त ई-बुक्स, ऑडियो बुक्स, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग दस्तयाब है।